Okay, dear participants, let us start the session. Okay, so in this session, we will be talking about the diabetic retinopathy detection using deep learning. So, good morning, everybody, and welcome to our online session. My name is Abdur Rahman, and I am assistant professor at FAS University. Diabetes is one of the fastest growing health challenges वर्ल्ड में. तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इसकी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं और उसकी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है. दैट इज़ ए कंडीशन जो कि साइलेंटली डैमेज करता है रेटिना को, इवेंचुअली लीड टू आपका जो विजन है वो लॉस हो जाता है और ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर सही वक्त पे ये अर्ली डिटेक्शन इसकी पॉसिबल ना हो तो. So the important thing is that early diagnosis and timely treatment ये प्रोवाइड करेगा मोस्ट सीवियर केसेस के अंदर. ठीक है. सो टुडेज वर्कशॉप के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग. और ये एक रिसर्च भी है जो कि सिद्रा ने कैरी ऑन की है और सिद्रा जो है वो फास्ट न्यूज़ में इसको एज ए थीसिस लेके चल रही हैं और शी इज़ ऑल्सो ए डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट और रिसर्च क्यूए टीम की लीड भी हैं वो इन क्लाउड इनोवेशन सोल्यूशन. तो सिद्रा, मैं आपसे कहूँगा कि आप काइंडली अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें डिटेल में और उसके बाद फिर अपना जो पेपर है उसके बारे में आपका पार्टिसिपेंट्स को बताएं. थैंक यू सो मच. काइंडली स्टार्ट द सेशन. Okay, sir. So first of all, Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing okay, and thank you for being here in this presentation. My name is Sidra Masood, and my thesis title is I'm currently doing Masters in Data Science from FAST University. As Sir told you about my professional background, I'm working as a research team lead in CIS, and I'm currently taking this as my MS thesis, and my topic is diabetic retinopathy detection using deep learning while focusing on multiple data sets training using a technique called augmentation, ensemble methods, and statistical rigor. So this is as you can see in my screen, this will be our presentation agenda. Firstly, I would like to give a background and motivation behind this issue. It is extremely important to understand the clinical significance behind this research and how it can impact patients जो बहुत ज़्यादा severely affect होते हैं इस disease से. Then I will also list down all the gaps in the existing research, list down all the research objectives which my research aims to address, list down all the methodology pipeline, dataset training, results, statistical validation, etc. So even though Sir already gave a brief background on DR, diabetic retinopathy, it is commonly known as DR, I would still would like to, give some context behind my research, behind the main topic. Firstly, I would like to, before beginning any technical work, I would like for you all to understand why it is a very important issue. So, diabetic retinopathy basically is a complication in diabetes mellitus. Diabetic patient के अंदर high blood pressure sugar levels होते हैं, which can damage our tiny blood vessels in the retina. Retina is responsible for our vision. It is a light sensitive tissue placed at the back of the eye. तो रेटिना के हम लोग अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले ले तो इट इज लाइक जैसे कैमरा में फिल्म होती है, इसी तरीके से रेटिना हमारी आई में, लाइक विदाउट रेटिना our eyes are useless, like we will lose our vision. So that's why it is very important to detect this disease timely, because it is a preventative disease. Like इसका इलाज है, but
लैकिंग यहाँ हो रही है कि हम लोग इसको टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाते, और इफ वी इफ यू आर अनएबल टू डिटेक्ट ग्रेड 4 जो प्रोलिफरेटिव स्टेज है, तो द पेशेंट विल गो ब्लाइंड. Hence, it is very important to detect this disease timely. मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशंस भी दे देती हूँ. देयर आर 5 क्लासिफिकेशंस फ्रॉम ग्रेड 0 टू ग्रेड 4. ग्रेड 0 मींस नो डीआर. नो डीआर में बेसिकली हमारा रेटिना बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी होता है, कोई विजिबल एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती रेटिना में. बट डायबिटिक पेशेंट आर ससेप्टेबल टू डीआर, तो इट इज रिकमेंडेड क्लिनिकली कि हम लोग विद इन एन ईयर एटलीस्ट एक दफा डीआर चेकअप करवाएं, just to see the overall health of the retina. ग्रेड 1 इज ग्रेड 1 बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, इसलिए बहुत मोस्ट केसेस में अनडायग्नोज हो जाता है, क्योंकि ये जो भी हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं उसमें भी डिटेक्ट नहीं कर पाता हमारा ऑर्थोपल, हमारे जो आई डॉक्टर्स होते हैं. ग्रेड 2 बेसिकली इज वर्स देन ग्रेड 1, बट इट कैन स्प्रेड साइलेंटली वेरी क्विकली. तो ग्रेड 2 रेटिना में भी ये है कि ट्रीटमेंट रिक्वायर होती है. ग्रेड 2 रेटिना में अगर किसी को ग्रेड 2 रेटिना आइडेंटिफाई हो गया है तो दे शुड विजिट अ डॉक्टर. ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में चांसेस होते हैं विजन लॉस के. So if a person has grade 3 and grade 4 retina DR, so it means they might just lose their vision. But the issue is we do have uh, basically we have resources to prevent this issue. इसकी इस बीमारी का इलाज है, बट हमारे पास आर्किटेक्चर नहीं है. हम आज अभी टू दिस डे हम लोग जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली मैनुअली डिटेक्ट कर रहे हैं ये डिजीज. जो हाई क्वालिटी पिक्चर्स, जो भी विजन की पिक्चर्स हम लोग हाई क्वालिटी रेटिनल इमेजेस ले रहे हैं वो मैनुअली डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें बाईपास हो जाती हैं. मैनुअल हैंडलिंग में काफी सारी चीजें बाईपास हो जाती हैं. That's why our researchers are now using AI-based detection system to overcome this issue. के जो हमारे ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं उन पे बर्डन भी बहुत ज्यादा है. इस स्लाइड में you can see the burden. Basically, in Pakistan alone, there is only one ophthalmologist per 100,000 population, which is far below recommended by WHO. WHO recommends 1 in 50,000, बट पाकिस्तान में ये रेशो बहुत ही कम है. तो जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा बर्डन होता है इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने का. तो अगर हमारे पास एक डीप लर्निंग मॉडल, एक एआई बेस्ड मॉडल होगा जो पहले से क्लासिफिकेशन हमें करके दे देगा इतने जो भी अर्जेंट ट्रीटमेंट के केसेस होते हैं, जिस विच इज ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3, तो हमारे इवन डॉक्टर से भी इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा. So in this research, I'm aiming to solve 4 problems. First problem is poor cross dataset generalization. ये सबसे ज्यादा important issue है, because usually researchers क्या कर रहे हैं कि they are using one data set which is IPEX. IPEX is the most famous data set used in DR. ये एक American data set है. And then they are doing testing on Mesidor data set. ये एक यूरोपियन डेटा सेट है. इससे हमारे पास एक तो ये इशू आ रहा है कि हम लोग पॉपुलेशन एक डिफरेंट पॉपुलेशन में डेटा सेट ट्रेन कर रहे हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन में डेटा सेट टेस्ट कर रहे हैं. तो हमारे मॉडल के रिजल्ट्स, मॉडल लर्न कुछ और कर रहे हैं और हम लोग डिटेक्शन किसी और पॉपुलेशन पे हो रही है, विच एक्चुअली इज लीडिंग टू फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स. So this needs to be addressed. और हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपना डेटा सेट मल्टीपल पॉपुलेशन पे ट्रेन करें. तो आई एम एमिंग टू सॉल्व दिस इशू बाय टेकिंग 5 different data sets from different population, one Europe, America, India and China, and then I am testing in the same data set. Like जैसे कुछ रिसर्चेस आईपेक्स पे डेटा सेट टेस्ट कर रही है और मेसिडोर पे आईपेक्स पे ट्रेन कर रही है और मेसिडोर पे टेस्ट कर रही है. तो दिस रिसर्च विल नॉट रिपीट दिस इशू. Hi Sidra, Osama here. I have a question.
यस। आप मुझे ये बताएंगी प्लीज कि आपने डेटा सेट किस फॉर्म के अंदर लिया है? डेटा सेट एक्सेल फाइल में लेबल्स होते हैं एंड पिक्चर्स होती हैं फोल्डर में, पिक्चर फॉर्म में। डीएल का डेटा सेट हमेशा पिक्चर फॉर्म में होता है। पिक्चर जो बेसिकली वो आपकी सीटी स्कैन वाली पिक्चर्स होती हैं, जी 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 एमआरआई टाइप की। जी। ठीक रेटिनल ठीक इमेजेस। ठीक है ठीक है। थैंक यू। ओके। सो प्रॉब्लम 2 इज सीवियर क्लास इम्बैलेंस। ये एक और बड़ा इशू है क्योंकि ये बहुत नीश डिजीजेज होती हैं ये सारी। जैसे कैंसर है, डीआर है, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों में पाया जाता है। तो हमारे पास जो डेटा सेट होता है ना, उसमें 60 to 70% लो डीआर के ही केसेस होते हैं, क्योंकि हर कोई डायबिटिक पेशेंट होता भी नहीं और हर किसी डायबिटिक पेशेंट को ये डिजीज होती भी नहीं है। तो हम लोग को सीवियर क्लास इम्बैलेंस का केस सॉल्व करना था, विच वी कैन डू इजिली बाय यूजिंग क्लास वेट्स एक्सेट्रा। तो ये वाला केस भी हम लोगों ने सॉल्व कर, ये वाली प्रॉब्लम भी हमने इस रिसर्च में सॉल्व की है। एंड अनदर इशू वी वर फेसिंग in current literature was most of the research was using only single model, like they will be using only CNN या सिर्फ transformer architecture. So in this research I tried to ensemble 3 different models: ResNet, EfficientNet and Vision Transformer. तो हम लोग इस रिसर्च में ensemble इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। एंड द अदर बिगेस्ट इशू करंट लिटरेचर इज फेसिंग इज लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन। जो भी स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन होती है बहुत रेयरली होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल या सिग्निफिकेंस टेस्ट, कैलिब्रेशन एनालिसिस वगैरह होते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जेन्युइन है भी या नहीं, ये चीज वेरीफाई करने के लिए। तो इस रिसर्च में ये सारे टेस्ट भी हुए हैं। So these were my objectives. Research objective 1, construct a unified pipeline of 5 diverse data set. Basically मैंने 5 different data sets लिए थे और उनको फिर हार्मोनाइज किया प्री प्रोसेसिंग में। उनकी वन सिंगल लेबलिंग की एक्सेल फाइल बनाई और सारे जो इमेजेस थी उसको भी एक ही फोल्डर में कर दिया। Second research objective was train and evaluate 3 models. My models were ResNet 50. It was a base model. एक convolutional layer base model है CNN का, EfficientNet B3 and WIT small. 5 DR grading classes थी। Research objective number 3, ensemble and TTA. So TTA is basically test time augmentation. Augmentation प्री प्रोसेसिंग के दौरान भी होती है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग टीटीए इम्प्लीमेंट की जाती है टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स एज वेल। एंड ये बेसिकली इंसैम्बल से पहले लगाने का मकसद ये था कि टीटीए विल इम्प्रूव द रिजल्ट एंड देन इंसैम्बल विल improve the area under the curve even better. So which I was able to get. Research objective 4 is handle the class imbalance issue, which we handled this issue by using weight random sampler, focal loss, class specific weights, ताकि माइनॉरिटी बेसिकली माइनॉरिटी क्लास जो होती है हमारी ग्रेड 4 और ग्रेड 3 वाली क्लास होती है, तो उसको हम लोगों ने हैवियर वेट्स दिए और जो मेजोरिटी क्लास होती है नो डीआर वाली क्लास उसको हमने कम वेट पे रखा, ताकि एट द एंड ऑफ द डे सबके वेट्स जो है इक्वल हो जाए। Research objective 5 was provide statistical validation, bootstrap confidence interval, use हुआ significance test, Bragg calibration and grad campaign. This was my methodology. I considered 5 datasets. Datasets के नाम है IPAC. IPAC was an American dataset. DDR was European dataset. IDRID Indian dataset है, DDR Chinese dataset है, IPAC American dataset है, Aptos Indian dataset है, IDRID Indian dataset है, Macedor European dataset है. So by taking multiple population dataset, I was able to generalize my deep learning model. Step 2 was pre-processing. Firstly I resized my images to 224 by 224 and applied multiple augmentation techniques, rotate करना, horizontal rotate, vertical rotate, jitter, flip, color contrast, etc. change करना. Step 3 was baseline model training.
Three models were applied: ResNet 50, EfficientNet V3, and Witsmall. Step 4 was, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई. आफ्टर ट्रेनिंग आई मूव्ड ऑन टू टेस्टिंग. टेस्टिंग पहले नॉर्मल की, उसके बाद फिर हम लोगों ने टीटीए अप्लाई किया. 5 डिफरेंट ऑगमेंटेशन. टीटीए मीन्स हम लोग ने अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए 5 डिफरेंट पिक्चर्स दी, 5 डिफरेंट फॉर्मेट में, मतलब कि ऑगमेंटेशन टेक्निक्स लगाई और 5 डिफरेंट फॉर्मेट में अपने मॉडल को पिक्चर दी और उसने फिर उसका प्रिडिक्शन की. एंड थ्रू दिस वी वर एबल टू एवरेज आउट द रिजल्ट. इससे हमारी वेरिएंस रिडक्शन हुई. Step 5 was ensembling method. Two types of ensembling method were implemented. First was averaging and second was stacking. Averaging is easier than stacking, बस उसमें रिजल्ट हमारी प्रोबेबिलिटीज एवरेज हो जाती हैं. स्टैकिंग में हम लोगों को मेटालिनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन लगाना पड़ता है. बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज आउट ऑफ ऑल द मॉडल्स इम्प्लीमेंटेड सबसे बेस्ट रिजल्ट स्टैकिंग के थे. Step 6 was statistical validation, and these were the key technical choices I made in my models, जैसे कि focal loss की value ये, smoothing, optimizer मैंने as a Adam W optimizer लिया, cosine annealing use की. cosine annealing के थ्रू बेसिकली हम लोग अर्ली स्टॉपिंग कर सकते हैं. सिंस अगर हमारा मॉडल का एरिया अंडर द कर्व फॉर लाइक 5 to 10 इपॉक्स नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो अर्ली स्टॉपिंग हो जाती है. इससे हमारी ओवरफिटिंग की कंडीशन नहीं आती. और दीज वर द ड्रॉप आउट 0.4 वेट डीके ग्रेडियंट क्लिपिंग. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है. आपने जो मॉडल ट्रेन करवाया उसकी एक्यूरेसी कितनी थी? अच्छा, एक और इसमें इशू ये है, क्लास एंड बैलेंस के इशू में हम लोग एक्यूरेसी कंसीडर नहीं करते एज अ मैट्रिक्स. तो इसमें एज अ मैट्रिक्स हमारे डिफरेंट है. एरिया अंडर द कर्व मैट्रिक है, F1 है एंड कैपा है. सही. मतलब आपने एक मेजरमेंट तो करी होगी ना, फिर भी कोई ना कोई मॉडल तो यूज किया होगा ना? जी, मैं ये बता रही हूँ. एरिया अंडर द कर्व इज, जैसे एक्यूरेसी एक मैट्रिक्स है ना, जितनी ज्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा मॉडल होगा. बट क्लास एंड बैलेंस का केस मैंने अभी फर्स्टली भी आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिया था. इसमें होता है जो ये वाली डिजीज होती है ना, क्लास एंड बैलेंस. तो हमारा मॉडल अगर एज इट इज ही क्लासेस रन देंगे ना, हम लोग एज इट इज अपना. अब आ रही है क्लियर आपको आवाज? जी, अब आ रही है. हाँ, तो क्लास एंड बैलेंस के केस में बेसिकली हमारा जो मॉडल होता है ना, उसका डेटा सेट ऐसा होता है कि 60 to 70% हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं. जैसे कि 60 to 70% डेटा सेट में नो डीआर के केसेस होंगे और सिर्फ 3 to 4% हमारे डेटा सेट में स्टेज ग्रेड 4 या ग्रेड 3 के केसेस होंगे. तो हम लोग को, अगर हम लोग ऐसे ही मॉडल रख देंगे और एक्यूरेसी मेजर कर लेंगे, तो एक्यूरेसी तो हमारी अच्छी आ जाएगी, बट हमारा मॉडल के फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा होंगे, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. इस वजह से इस कंडीशन को हम लोग ओवरकम करने के लिए एक तो हम लोग वेट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ऊपर से एक्यूरेसी एज अ मैट्रिक्स रखते ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा 10-11 आती है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास वेट्स दिए हुए होते हैं. तो जब भी हम लोग ने इसको एज अ मैट्रिक्स कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम लोग दूसरे मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं. दैट इज, मैंने शायद दिखाया है यहाँ पे, एरिया टेस्ट रिजल्ट्स इसके थ्रू मेजर करते हैं. एरिया अंडर द कर्व, AUC इज एरिया अंडर द कर्व, कैपा इज अनदर मेथड, and F1 is also another matrix that we use. ओके, थैंक यू. अच्छा, आपने जो डेटा सेट के बारे में आप बता रही थी कि आईपैक्स का भी आपने डेटा सेट लिया, उसके अंदर कुछ आपके पास CSV में लेबल्स वगैरह भी हैं, फीचर्स वेक्टर्स हैं आपके बेसिकली डेटा सेट के, और उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी हैं. तो पिक्चर्स का जो डेटा सेट है जो आपने ट्रेन करवाया, वो आपने एक इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन के थ्रू करवाया? नहीं, आपके अपने सिस्टम में हो जाएगा.
थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगी? मैं जस्ट अपनी नॉलेज के लिए वो पूछ रहा हूँ आपसे। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास डेटा सेट है ना, एक तो आप फीचर्स और वेक्टर्स के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है? आपके पास जो डेटा सेट है आईपैक्स का, उसके साथ साथ आपने बताया था कि आपके पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, मतलब जो बेसिकली टेस्ट रिजल्ट्स हैं पेशेंट्स के, हम्म। ऐसे ही है? जी जी। तो उन टेस्ट रिजल्ट्स की जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पे वो जो एक छोटा सा क्लॉट है, जो बेसिकली डायबिटिक, जो आपकी जो डिजीज़ का नाम है, वो उससे उस क्लॉट के ज़रिए वो डायग्नोज हो रहा है, ऐसे ही है? हम्म। मैं वो पूछना चाह रहा था कि उसके लिए आपने डीप लर्निंग के अंदर, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे अगर हम कोई इस तरह की डिटेक्शन की बात करते हैं ना, जिसमें रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, तो उसके अंदर टेंसर फ्लो और कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ यस हो रही यस यस, होती अच्छा आप हैं, योलो। लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं। जी या एग्जैक्टली। योलो तो खैर यूज नहीं हुआ, नहीं नहीं, योलो यूज नहीं हुआ हुआ इसमें। इसमें टेंसर फ्लो ही यूज हुआ हुआ है, हगिंग फेज एंड टेंसर फ्लो। सही 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 सही, ठीक है ठीक है, थैंक यू। So these were my results. ResNet 50 was my base model. उसके compared to other two models, सबसे like थर्ड लेवल पे रिजल्ट थे। ImageNet प्री ट्रेन यूज हुआ हुआ था। पैरामीटर ResNet 50 के पैरामीटर्स होते हैं 24.0 मिलियन। इसके कंपैरेटिवली एफिशिएंट नेट B3 पैरामीटर एफिशिएंट है, इसके ऑलमोस्ट हाफ पैरामीटर्स होते हैं और फीचर डायमेंशन भी ऑलमोस्ट हाफ ही होते हैं, मतलब कि लेस देन ResNet 50। इसमें ResNet 50 वर्क्स अंडर 50 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, तो ResNet 50 की ट्रेनिंग में भी काफी टाइम लगता है। ResNet 50 बेसिकली रेजिडुअल नेटवर्क कनेक्शन है, इट स्किप्स द कनेक्शन, तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल CNN का इशू होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट VGD प्रॉब्लम जो होती है नॉर्मल CNN मॉडल्स में, तो इसमें वो कवर हो जाती है ResNet 50 में। WIT is a completely different architecture. It is a transformer. It doesn't work on convolutional layer. It works on self-attention mechanism and patch processing. तो इसमें 16 by 16 की patch processing हुई हुई है। Out of all these three models, WIT सबसे कंसीडर किया जाता है इन दोनों में से बेस्ट मॉडल, बट इन आर केस क्योंकि WIT एक बहुत बड़ा मॉडल है, इसको ना उसकी उसके सही से रिजल्ट्स लाने के लिए मिलियंस का डेटा सेट हो तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। तो इस वजह, और हमारा डेटा सेट था 47,000 इमेजेस पर, तो इस वजह से स्मॉल डेटा सेट होने की वजह से विट के रिजल्ट्स कंपेयर टू एफिशिएंट नेट कम आए। एफिशिएंट नेट के एरिया अंडर द कर्व 80 है, विच इज वेरी गुड। So after the training, I applied these 5 different types of test: augmentation, original image, horizontal flip, vertical flip, rotation +90 and rotation -90। इसके जो भी प्रोडिक्शन मॉडल ने दी थी हमारे, वो एवरेज कर दी गई, एंड इसके थ्रू हमें रीट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी वेरिएंस रिड्यूस करने के लिए। एवरेजिंग एंड अगर इंसैम्बल टेक्निक्स में हम लोग एवरेजिंग और स्टैकिंग के रिजल्ट्स कंपेयर करें, तो एवरेजिंग के रिजल्ट्स इंप्रूव किए थे सिंगल मॉडल से कंपेयर करें, जैसे सिंगल मॉडल की एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम 80 तक पहुंचा था, लेकिन इसका 81 तक हो गया था इंसैम्बल में, विच इज अ 0.015% इंक्रीज। बट कंपेयर करें स्टैकिंग से, तो स्टैकिंग में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था कि 80 से 85 तक का जंप आ गया था। और ये ब्रायर जो है स्टेटिस्टिकल वैलिडेशन का टेस्ट है, इसके भी रिजल्ट इसमें काफी बेटर थे, ऑलमोस्ट 3 times बेटर कैलिब्रेशन देन रेस्ट ऑफ द मेथड्स। हियर यू कैन सी ऑल द रिजल्ट्स। ये मोस्टली स्टैकिंग के लिए नीचे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट स्टैकिंग में नजर आई थी। अच्छा, दिस इज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन।
स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन 4 टाइप्स की हम लोगों ने की थी। एक फर्स्ट वन वाज बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें स्टैकिंग के रिजल्ट्स मेनली हमारे पास क्योंकि इम्प्रूव हुए थे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टैकिंग के रिजल्ट्स ही प्रेजेंट किए हुए। इसमें जो की ऑब्जर्वेशन मिली थी कि जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल अचीव हुआ है हमारा, वो कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा एनी अदर मेथड से। जो हमारा मिकनार टेस्ट होता है वो बेसिकली ये बताता है कि हमारे जो भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, अगर उनको हम जो हमारे 2 क्लासिफायर हैं वो हमारे इमेज पे सेम रिजल्ट दे रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये इस टेस्ट का बेसिक मकसद ये होता है कि हमारा जो ईच मॉडल है वो अपनी ओन प्रिडिक्शन कर रहा है या दूसरे मॉडल की प्रिडिक्शन कॉपी तो नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने इसमें 6 पेयर्स बनाए थे ईच मॉडल के हिसाब से, और इसकी मॉडल की जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.0001 होनी चाहिए। तो हमारे ऑल 6 पेयर्स की लेस देन 0.0001 ही थी, विच इज गुड। बैरियर स्कोर जो होता है वो हमारी प्रोबेबिलिस्टिक कैलिब्रेशन होता है। जितना स्कोर कम होगा उतनी बेटर कैलिब्रेशन क्वालिटी है हमारी। तो उसमें भी स्टैकिंग की सबसे बेटर कैलिब्रेशन अचीव हुई थी 0.0714। These are all graphical representation of the results. So this is now the comparison with wider literature, kind of like a discussion. हमारी वाइडर लिटरेचर में सबसे फेमस रिसर्च गुलशन की है, सिंस इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर जिसने डीप लर्निंग मॉडल इंटीग्रेट किया था डीआर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ही वाज एबल टू गेट 0.99 एक्यूरेसी area under the curve, sorry, even he used area under the curve as a matrix. So he was able to get 0.99 under using single data set. तो कंपैरिजन फेयर नहीं है क्योंकि उसने सिंगल मॉडल पे डेटा सेट ट्रेन करना एंड एक्यूरेट एंड एरिया अंडर द कर्व या मैट्रिक्स अचीव करना इज इजियर। सो हम लोगों ने इसकी रिसर्च का एक गैप ऐसे केटर कर दिया कि सिंगल डेटा सेट आईपैक्स का सिंगल डेटा सेट यूज नहीं किया, हम लोगों ने मल्टीपल डेटा सेट्स इंटीग्रेट किए हैं। Another research, it is a Singapore based study. इसमें मल्टी कंट्री डेटा सेट यूज हुआ बता, बट मोस्ट इमेजेस वर बेसिकली फ्रॉम नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, मतलब कि सेम कैमरे से सेम एंगल से पिक्चर्स थी। इसका भी बहुत फर्क पड़ता है डीएल मॉडल्स के लिए। तो अगेन मॉडल में जनरलाइजेबिलिटी नहीं थी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च हुई थी। अख्तर was my base paper. तो बेसपर की रिसर्च ने ओनली रेस्टनेट यूज किया हुआ था सिंगल डेटा सेट पे, इवन दो ही वाज आल्सो एबल टू गेट 0.9 एरिया अंडर द कर्व, बट हम लोगों ने अख्तर की जो फ्यूचर डायरेक्शंस थे उसको आगे लेके गए। ही रेकमेंडेड कि हम लोग को मल्टीपल डेटा सेट्स पर काम करना चाहिए टू इम्प्रूव द जनरलाइजेबिलिटी, which we did. So that's why we worked on 5 data set and we were able to get, एक तो हमारी सेटिंग हेट्रोजीनियस थी क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन थी और डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट कैमरा से पिक्चर्स दी हुई थी। तो इवन डेटा सेट में भी क्वाइट विजिबल है कि सारी पिक्चर्स काफी एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड वी वर एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स, गुड एरिया अंडर द कर्व 85, and kappa is also better than all the rest. Even Akhtar का जो kappa results था वो 0.68 था, and we were able to get 0.7 in our multiple data set research. But every research has their limitations. तो इस research की भी अपनी limitations थी। First limitation
ये थी जो हमारा मॉडल है वो माइल्ड डीआर एंड नो डीआर की ग्रेडिंग को मिक्स कर रहा था। मतलब कि जो नो डीआर और माइल्ड डीआर को डिटेक्ट करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि उस डीआर मॉडल जो है ना, माइल्ड डीआर के अंदर जो भी टाइनी ब्लड वेसल्स शो हो रहे होते हैं वो एज अ नॉइज कंसीडर कर लेते हैं। तो माइल्ड डीआर के अंदर बहुत बहुत कम डैमेज हुआ होता है आपके रेटिना में। Hello Sidra, I have question. My name is Furqan Ahmed Khan. I have a Yes. little question कि आपने जैसे बताया आपने मल्टीपल डेटा सेट यूज़ किए हैं, तो डिफरेंट Yes. कैमरा क्वालिटी और इमेज होती हैं, एंगल होते हैं और स्टैंडर्ड अलग होते हैं हर डेटा सेट के। तो जो डोमेन शिफ्ट आती है तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? पर ये वाली चीज जो है ना कि डेटा सेट हार्मोनाइज हो जाए, ये मैंने पहले ही प्री प्रोसेसिंग के दरमियान कर लिया था, तो ट्रेनिंग में ये मसला आया नहीं। ओके, लेकिन प्री प्रोसेसिंग में हमें कौन सा क्या एल्गोरिथम यूज़ किया था कि प्री प्रोसेसिंग में ये मल्टीपल डेटा सेट्स हैं तो डोमेन शिफ्ट हो ही होगी आपकी, ठीक है? बहुत कुछ अच्छे यस। एंगल होंगे, कुछ कुछ बेकार होंगे, तो किस पहली तरह बात से तो उसको फिर आपने? जी पहली जी। बात तो जो ब्लर पिक्चर्स थी, क्योंकि हमारे उसका मेन मकसद ये होता है कि हम लोग डिजीज सही से डिटेक्ट करें। तो जो ब्लर पिक्चर्स थी जिनका कोई काम नहीं था, पहली बात तो हर डेटा सेट से वो वाली पिक्चर्स को हम लोगों ने ओमिट किया है, और जो बिल्कुल हाई क्वालिटी की पिक्चर्स हैं वही रखी हैं इस पिक्चर में, क्योंकि सारा क्लिनिकल डेटा सेट ही है। तो ऐसा था नहीं कि मतलब कि कुछ इमेजेस बिल्कुल ही ब्लर होगी। जो ओपन सोर्स क्लिनिकल डेटा सेट था, इसकी इमेजेस की क्वालिटी में कोई मसला नहीं था। हाँ, इसके ऑगमेंटेशन वगैरह स्टैंडर्डाइज करिए, उसके बाद फिर आगे काम किया है ताकि डेटा सेट हार्मोनाइज हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, फर्स्ट इशू वाज क्लासिफिकेशन ऑफ माइल्ड डीआर। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हमारा जो मॉडल है वो माइल्ड डीआर एंड नो डीआर को कंफ्यूज कर रहा था। तो ये लिमिटेशन बहुत इजीली ऐसे हल हो सकती थी कि मुझे पूरा का पूरा डेटा सेट अपना हार्मोनाइज करना था। तो 224 by 224 रेजोल्यूशन रखी थी, बट हम लोग इसको हायर रेजोल्यूशन पे अगर लेके जाते 512 एंड 1024, तो ये वाला मसला सॉल्व हो सकता था कि जो मॉडल नो डीआर एंड माइल्ड डीआर की बाउंड्री मिक्स कर रहा था। सेकेंड लिमिटेशन वाज आईपैक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। लाइक आईपैक का जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो 80 जीबी का, 88 या 80 जीबी का है, और बाकी जो भी डेटा सेट ओपन सोर्स अवेलेबल है वो इतने बड़े हैं नहीं डेटा सेट्स। तो एक तरीके से डेटा सेट इम्बैलेंस भी था कि अमेरिकन पॉपुलेशन का डेटा सेट ज्यादा था एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, चाइना और इंडिया। इंडिया के 2 डेटा सेट्स लिए थे इसी वजह से, क्योंकि उसका डेटा सेट ये इमेजेस कम थी एज कम्पेयर टू अदर डेटा सेट्स, बट स्टिल देयर वाज अ डेटा सेट इम्बैलेंस। तो ये वाला इशू भी अगर सॉल्व हो जाए, यूजली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में ज्यादातर अमेरिकन का ही डेटा सेट ज्यादा होता है, वही लोग ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। बट इन फ्यूचर if we are able to get other population results, if we are able to get other population data set equal, तो ये वाला डेटा सेट इम्बैलेंस की लिमिटेशन भी सॉल्व हो सकती है। सेकंड लिमिटेशन वाज वी कुड हैव परफॉर्म अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन, मॉन्टी कार्लो ड्रॉप आउट्स या एमएल के बेसिन मेथड्स एक्सेट्रा। तो इससे हम लोग नो अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन भी कर सकते थे। Third limitation was I tried to do this clinical validation using a real world data set, but real world data set के लिए थोड़ा सा ethics का भी मसला होता है और reach करना भी हॉस्पिटल्स में। तो एक ये थोड़ा ethical issue की वजह से real world data set हम लोग use नहीं कर सकते, but if someone has access to real world data set, तो दैट इज अनदर गैप जो मोस्टली रिसर्च अवॉइड करती है कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर काम नहीं हो रहा।
तो दिस इज अनदर लिमिटेशन, फ्यूचर वर्क इस पर हो सकता है. Third, I would say I started this research keeping 6 data set in mind. I also included ODI data set. But इस data set में जो है multiple diseases थी, तो I had to remove this data set. तो फ्यूचर रिसर्च में हम लोग बेसिकली, अगर फ्यूचर रिसर्च में हम लोग मल्टी डिजीज डेटा सेट भी यूज कर सकते हैं इसके DRT स्टडी में. So in this research, there can be 4 contribution. We can see 4 clinical contribution. Firstly, एक तो multi data set harmonization framework, we are able to achieve that. A reproducible pre-processed pipeline of 5 different DR data sets. ये itself ही एक contribution है, क्योंकि जो अदर स्टडीज है उन्होंने 5 हार्मोनाइज डेटा सेट की पाइपलाइन कभी क्रिएट की ही नहीं. Second contribution is combining a CNN model with transformer. इससे पहले कभी भी काम हुआ है तो वो CNN के ही मल्टीपल मॉडल्स यूज कर लिए, जैसे CNN itself, ResNet itself और EfficientNet. ये तीनों CNN की ही टाइप्स है मॉडल की. But I tried to use another model, which is Vision Transformer, to also incorporate transfer learning in this research. A very comprehensive statistical validation protocol has been followed in this research, and 4 statistical validation framework was used. अच्छा, इसमें ग्रेड कैम भी यूज हुआ हुआ है. इसकी पिक्चर्स इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, वरना मेरी रिसर्च में ग्रेड कैम भी यूज हुआ हुआ है. These are the recommendation for future work. I have highlighted all these issues even previously as well. लॉन्ग टर्म गोल यही है कि अगर कोई GDPR की कंप्लायंस करते हुए रियल वर्ल्ड डेटा सेट यूज करके काम करे तो this research will be way more useful clinically. अच्छा, आपने डेटा सेट ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से उठाया? जी, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से उठाया. अच्छा, आप GDPR कंप्लायंस की बात करिए, आप GDPR कंप्लायंट हैं इस रिसर्च के अंदर, या आप और ज़्यादा इन्हेंसमेंट की तरफ बात करें कि GDPR कंप्लायंट हो सकता है? मैंने तो मेरे में तो GDPR का कोई सीन ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रियल वर्ल्ड डेटा सेट. GDPR कंप्लायंस उस केस में की बात कर रही हूँ अगर कोई GDPR कंप्लायंस रखते हुए रियल वर्ल्ड डेटा सेट यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने यूज इसी वजह से नहीं किया क्योंकि इट्स नॉट एथिकल एक्चुअली कि मैं रियल वर्ल्ड डेटा सेट, रियल पेशेंट्स का डेटा सेट अभी यूज कर लूँ. तो अगर कोई ये कंप्लायंस करते हुए डेटा सेट यूज करे और रिसर्च करे तो इट विल बी अ रियली ग्रेट रिसर्च, क्योंकि इससे पहले लोग इसी वजह से, इसी लिमिटेशन की वजह से रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे भी काम नहीं कर पा रहे. अच्छा, GDPR तो सिर्फ यूरोपियन कंप्लायंस है ना? जी जी, सही सही है. तो ये कि हाँ सही है, ठीक है. इस रिसर्च पे मैंने यूरोपियन डेटा सेट भी लिया हुआ, तो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड. ओके ओके, गॉट इट. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी साथी, आपको एक छोटा सा सवाल है जस्ट फॉर माय लर्निंग. आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी ली है उसमें जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग की है वो आपने गूगल को लैब यूज किया है या फिर आपने कोई मतलब जुपिटर नोटबुक इस तरह की आईडी यूज की है? बिकॉज थोड़ा सा मुझे उसमें एम्बिगुअस था कि ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है. अच्छा, मैं बता देती हूँ. मैंने प्री प्रोसेसिंग अपने सिस्टम पे की थी, जुपिटर नोटबुक पे, और जो ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग के लिए GPU रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मैं अपने सिस्टम पे कर नहीं सकती थी, तो मैंने कैगल नोटबुक पे की थी, क्योंकि डीप लर्निंग की ट्रेनिंग कोलैब पे सही से होती नहीं है. स्पीकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं इससे पहले भी डीप लर्निंग मॉडल्स पे काम कर चुकी हूँ, तो कोलैब बार बार क्रैश होता है. ट्रेनिंग सेल इटसेल्फ बहुत टाइम लेता है.
लाइक जी आराम जी से 2 घंटा आपका एक ट्रेनिंग सेल का चला जाता है प्रोसेसिंग जीपीयू। एबिलिटीज कम है उसकी जी। जी। तो इसी वजह से 90 मिनट शायद उसका टाइम आउट हो जाता है फुल ऐप का। तो आई हैड टू ऑप्ट फॉर अनदर ऑप्शन, क्योंकि कैगल में ऐसा होता नहीं, कैगल नोटबुक में कि 90 मिनट्स के बाद सेशन एक्सपायर हो जाए। तो इस वजह से मैंने कैगल यूज किया था इसके लिए। ओके ठीक है, थैंक यू। So these are my results. अच्छा, इस रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स है ना, उसमें सबसे एक पॉजिटिव चीज ये है कि जो मेरा मॉडल है वो DR ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के 100% रिजल्ट दे रहा है। मतलब कि देयर इज नो फॉल्स नेगेटिव, नो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव इन माय रिसर्च। तो ये एक क्लिनिकली बहुत अच्छी इंटरवेंशन है कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो पेशेंट्स होते हैं इनको इमीडिएट अटेंशन की, इमीडिएट केयर की जरूरत होती है। तो ये जो मॉडल है वो इन दो बहुत अर्जेंट केयर वाली ग्रेड्स पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन टू द क्लिनिकल सर्विस। इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन। अगर इस सिस्टम को हम हॉस्पिटल में डिप्लॉय करना हो, तो जैसे हमारे पाकिस्तान में जैसे लो रिसोर्स एनवायरनमेंट है, तो हमारे पास चैलेंजेस तो बहुत हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये क्वेश्चन है। और इस चैलेंज को आप सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपकी मशीनें भी इतनी परफेक्ट नहीं है, आपके पास रिसर्च भी इतने परफेक्ट नहीं है। और क्योंकि इसमें आपका जब मेडिकल और आई की बात आती है, तो आपके पास बहुत ही कम चांस होता है कि आप उसके आपका रिजल्ट बहुत ख़राब आए, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें मैटर करती है। क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी मैटर नहीं सही रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते या केस ख़राब हो सकता है। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में लेके जाती हैं? अच्छा देखिए, रियल वर्ल्ड के थ्रू डिफरेंट मोड्स होते हैं, आप डिफरेंट मोड्स के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डिप्लॉयमेंट सीखी है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो उस हॉस्पिटल का कितनी रिसोर्सेज हैं उसके पास, क्योंकि आप कोई भी मॉडल डिप्लॉय करते हैं उसकी अपनी रिसोर्स लगती है, अपना कैपिटल लगता है उस मॉडल की डिप्लॉयमेंट के लिए। तो वो ऑब्वियसली वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अब जैसे अगर खान डिप्लॉय करना चाह रहा है तो दे हैव गुड रिसोर्स, वो कोई बहुत अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग AWS वगैरह के थ्रू डिप्लॉय कर लेंगे अपना मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल इंटीग्रेट कर लेंगे। एंड व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन यही था, जो चैलेंज होगा उसको आप कैसे वो करेंगी, आइडेंटिफाई, और उसको हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन था। कौन सा चैलेंज? जो भी रियल वर्ल्ड में आएगा उसमें आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन था। आपने आंसर दे दिया है। ओके। अच्छा सीधा इसके अंदर एक मेरा क्वेश्चन है। सिद्रा, आई हैव अनदर क्वेश्चन। अच्छा, आप करने वाले हैं। नहीं नहीं, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा, सही है। ये आपका इस मॉडल का सबसे कॉमन फेलियर क्या था? और आपने कौन से रेटिनल एबनॉर्मलिटीज़ को मॉडल को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती थी? मतलब जो आपका रेटिनल एबनॉर्मलिटीज़ मॉडल है, वो आपको कैसे कंफ्यूज करती थी? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कैसे करती थी? इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये माइल्ड को और लो को कंफ्यूज कर रही है, उसकी दो बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज कंफ्यूज कर रहा है। और इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि अभी रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम लोगों ने डेटा सेट को कंप्रेस किया है। मैंने आपको बैच साइज बताया था कि 2 to 4 by 2 to 4 के रेजोल्यूशन के पिक्चर्स दिए हैं हम लोगों ने, क्योंकि नंबर ऑफ पिक्चर्स ज्यादा थी।
हम लोग इस प्रॉब्लम को हल ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नो डीआर और माइल्ड डीआर में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो वो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर में, जैसे कि 512 की पिक्चर ले ली, 512 बाय 512 की पिक्चर, या 1024 बाय 1024 की पिक्चर ले ली, इससे ये हाई डायमेंशन पिक्चर होती है। इससे जो छोटे बहुत माइल्ड डीआर में एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। मेरा भी एक क्वेश्चन है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी फुरकान ने जो क्वेश्चन किया था कि अगर आप इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर कोई और फर्दर इन्हेंसमेंट होगी, या फिर सिर्फ ये यही एक रिपोर्ट को डिटेक्ट करके और डायग्नोस करके बता देगा, या साथ साथ PHI इंफॉर्मेशन भी लेगा पेशेंट की, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन? देखिए, इसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज नहीं करना है, इसको एज अ स्क्रीनिंग टूल यूज करना है। जैसे कि पेशेंट हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया स्क्रीनिंग के थ्रू, ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4। फिर जब हमारे पास पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट के जो रिपोर्ट्स हैं वो कम हो गई, तो उसको जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो जाके फिल्टर आउट कर देगा। जो हाई अर्जेंसी के पेशेंट है ना, उनका एक दफा और गो थ्रू करेगा मैनुअली, और देन उनकी केयर करेगा। तो इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल, इट्स अ स्क्रीनिंग टूल। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये पेशेंट से रिलेटेड उसकी कोई इंफॉर्मेशन वगैरह भी इसके अंदर इंजेस्ट होगी, इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर? नहीं, सिर्फ रेटिनल इमेजेस होंगी। ठीक ठीक है। मैंने जी बताएं बताएं। नहीं नहीं बस। ओके। एक और ये क्वेश्चन था, इसी को कैरी ऑन करता हूँ मैं, कि ये फ्रेमवर्क फ्यूचर में जैसे हम मोबाइल या किसी एज डिवाइस से या डायबिटिक स्क्रीनिंग से हम इसको अडॉप्ट किया सकता है, जैसे लाइव किसी का हम रेटिना लें और उसी वक्त उसकी कैप्चर लें, कोई इस तरह से कि हार्डवेयर से हम करें, तो उस वक्त ये फ्यूचर वर्क में ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको? रेटिनल इमेजेस स्पेशल कैमरा से ही यूज होती हैं, मतलब कि आप कैसे करेंगे लाइव? मीन्स ये कि फ्यूचर में जैसे कोई आप हार्डवेयर की तरफ जाएंगी तो आप उसमें जैसे मोबाइल में आपने एक लेंस बना दिया और उस पर आप उसी वक्त आप जैसे पेशेंट आ रहा है और उसी वक्त आपने एक पिक्चर ली और उसका वो, तो आपने इसका कोई फ्यूचर वर्क में ये सोचा है, या इसका कुछ इसी को आगे हम फ्यूचर वर्क में कर सकते हैं, इसी फ्रेमवर्क को? कर सकते होंगे, मेरा तो नहीं ख्याल कर सकते वैसे पर्सनली। ओके ओके, जी, इसमें थैंक ऐसा यू। है फुरकान कि ये जो रेटिनल इमेजेस होती हैं ये स्पेशल हार्डवेयर और इक्विपमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, मशीन्स होती हैं जैसे एमआरआई की मशीन है। तो ये उसके थ्रू ये स्कैन किए जाते हैं ना, तो ये मोबाइल के थ्रू जो है वो अभी मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि मोबाइल में इतनी डिवाइस, इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो इस तरह की रेटिनल इमेजेस को जो है वो स्कैन कर सके। तो बहरहाल अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ किया जा सकता होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, अगर और भी किसी को कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग काइंडली इंटरेक्टिवली पूछ सकते हैं। यू कैन कैरी ऑन। जी मुझे एक सवाल पूछना था कि जो है ना फ्यूचर में ये और कितना स्केल हो सकता है और कितनी डिवाइसेस में इंटीग्रेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? हॉस्पिटल्स में ही, आई हॉस्पिटल्स में ही इंटीग्रेट होगा फ्यूचर में। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? कि ये कितना स्केल अप हो सकता है? कितना स्केल हो सकता? स्केल है तो हम लोग डायरेक्टली इसको
आपकी अपनी हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट रिसोर्सेज के हिसाब से स्केल अप हो सकता है। जैसे कि अब मैं इस पे अपने स्मॉल सेटअप पे काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली है जब हम लोग ऊपर जाएंगे किसी हॉस्पिटल के हिसाब से सेटअप पे जाएंगे, उसकी अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से ये स्केल अप हो सकता है। ये ऑटो पाकिस्तान के स्केलिंग अंदर वगैरह पार्टली। करने के लिए भी रिसोर्सेज की नीड होती है ना, तो ओके। और ये पाकिस्तान के अंदर कितना वाइडली यूज हो रहा है? कितना वाइडली यूज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आई वुडेंट से ये यूज हो रहा है। अभी इस पे रिसर्च ही हो रही है पाकिस्तान पे, ये इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ पाकिस्तान में। और वैसे भी ये वर्ल्ड वाइड भी अभी इस पर रिसर्च ही हो रही है डीप लर्निंग मॉडल पे, जब भी ये रिसर्च नोवेल है। और इसकी स्टडी पाकिस्तान में कितनी हो रही है? मैंने एक जगह रीच आउट किया था इसमें पाकिस्तान में, टू गेट द रियल वर्ल्ड डेटा सेट, तो वो रूरल एरिया के डेटा सेट कलेक्ट कर रहे थे। तो आई वुड से एक वो स्टडी है जो अभी ऑन गोइंग है, तो जब भी मैंने उनको उनके साथ काम नहीं किया, वो पीसीएसआईआर की रिसोर्स थे और वो अभी डीआर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज का। तो अभी रिसर्च वर्क ही चल रहा है पाकिस्तान में भी। थैंक यू। जी, ये रिसर्च वर्क तो चल रहा है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग कि इसके रिजल्ट्स जो हैं बाकी सबसे बेहतर हैं और इसके अंदर नोवेल कंट्रीब्यूशन जो हैं वो शामिल की गई हैं। आपने पेपर भी जो इंक्लूड किए थे वो 2026 एंड ऑनवर्ड्स के जर्नल पेपर थे, राइट? यस सर। जी, ठीक है। So students, if you have any more questions, you can ask. We have 3 more minutes left. मीनवाइल आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए क्योंकि मैंने चैट में लिंक शेयर किया हुआ है। अच्छा सिद्रा, आप ये कर सकती हैं कि आपकी जो कैगल की जो नोटबुक है उसका एक व्यू दिखा दें इनको स्टूडेंट्स को। ओके, मैं देख लेती हूँ अभी। जी, थैंक यू।
ResNet notebook. ये सारी ट्रेनिंग की वैल्यूज हैं पर epoch. अर्ली स्टॉपिंग हो गई थी 17 epoch पे ट्रेनिंग स्टॉप हो गई थी. These are all results. Confusion matrix. ये efficient net की है. This is train test split. Class weights दिए हैं, focal loss ready. अब वो कितना टाइम लगा ये डेटा ट्रेन करने में? पर मॉडल कुछ मॉडल जैसे रेसनेट वाज रियली लॉन्ग 2 आवर्स के लिए रेसनेट हुआ. ये सब मैं सिर्फ ट्रेनिंग सेल बता रही हूँ, बाकी सेल नहीं बता रही. ट्रेनिंग सेल इटसेल्फ काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. एफिशिएंट नेट का अलग 2-3 घंटे ट्रेनिंग सेल के. और इनकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है? एक्यूरेसी क्लास इम्बैलेंस के केस में हम नहीं करते. हम लोग ने मैंने 3 अलग मैट्रिक्स रखे थे, कैपा, एरिया अंडर द कर्व एंड F1 स्कोर. इसमें भी अर्ली स्टॉपिंग हो गई थी. 60 epoch रखा था. 25 पे ही लर्निंग मॉडल लर्न नहीं कर रहा था, तो 25 पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी. ये वेट स्मॉल किया है विजन ट्रांसफॉर्मर. सिक्सटीन epoch पे स्टॉप हो गई थी. दिस वाज ensemble मॉडल. इसमें तीनों मॉडल्स के PTH फाइल जो होती है डॉट पाथ फाइल, वो इंटीग्रेट करके फिर इनका ensemble मॉडल बनाना. This is phase 3 statistical validation. ये एरिया अंडर द कर्व के ग्राफ्स हैं. जी सिद्रा, आप काइंडली ये बताएंगे ये जो ग्राफ है, बार ग्राफ जो अभी आपने दिखाए, इसको काइंडली बता दें क्या Yeah. रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी. ये एरिया अंडर द कर्व की ईच, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि देखिए. जी जी जूम कर लो. थैंक यू. सो ये एरिया अंडर द कर्व है. इसमें पर्पल लाइन स्टैकिंग का ग्राफ है, स्टैकिंग का कर्व है. जो इनके रिजल्ट्स है ये वही उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो पर्पल वाले जो क्लोजर टू मिडिल पॉइंट है, ये डॉटेड लाइन जो है पर्पल वाले स्टैकिंग का है. तो इसके वैसे भी सबसे बेस्ट रिजल्ट्स है, तो ये क्लोजर टू दिस लाइन है. एवरेजिंग ये रिजल्ट ऑरेंज से है, राइट से एफिशिएंट नेट के हैं, ग्रीन से विड्थ स्मॉल के हैं, और ये देखिए डॉटेड लाइन है परफेक्ट कैलिब्रेशन की. एंड यू कैन सी मेरी प्रेजेंटेशन में भी यही बात थी, स्टैकिंग की कैलिब्रेशन सबसे बेस्ट आई थी. तो इसके ये परफेक्ट कैलिब्रेशन की जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, उसकी सबसे करीब स्टैकिंग हुई है
एरिया अंडर द कर्व में भी, और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बार चार्ट्स हैं। तो मतलब ये कि स्टैकिंग एनसेम्बल जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, आइडियल है। यस, आइडियल सबसे ज़्यादा है स्टैकिंग। दैट्स गुड। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो काइंडली पूछ ले, फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, सिद्रा, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू टू presenting today your thesis and work, research work, uh, and also thank you for all the participants over here joining the session for learning purposes and for the research as well. And thank you so much for joining the session. Inshallah, soon we will be having more session related to this diabetic retinopathy, inshallah. Okay, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।